الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عقل والوں کے واقعات میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جب دو دوست جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں اور مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اس سلسلے کے اندر عقل سے تعلق رکھنے والے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے اور ہمیں عقل جیسی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس احسان اور نعمت پر ہم اس کا شکر ادا کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے اور ہمارے عظیم سپہ سالار بھی تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رعایا کی خبر گیری بھی کیا کرتے تھے اور ان کا بہت زیادہ خیال بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں ایک تاجر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ آ کر آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور، آپ کا جو قاضی ہے، اس قاضی کے پاس میں نے ایک امانت رکھوائی تھی اور میں نے تھیلی کے اندر 2000 دینار بند کر کے مہر لگا کر نام لکھ کر میں نے اس کے پاس امانت رکھوائی، اور جب میں گیا کہیں تجارت پر وہاں میرے قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ میں واپس آیا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، دیناروں کی ضرورت تھی۔ میں جب اس کے پاس آیا تو اس نے مجھے وہ تھیلی واپس کی۔ جب میں نے تھیلی کو کھولا تو اندر دینار نہیں تھے بلکہ چاندی کے چھوٹے موٹے سکے پڑے ہوئے تھے۔ آپ کرم کیجئے، میری فریاد کو سنیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کا، گھر بار چلانے کا، آپ ایسا کیجئے، مجھے اس قاضی سے میرا حق دلائیے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے پوچھنے لگے، یہ بتاؤ کہ وہ تھیلی جو تم نے دی تھی ان کو، اس تھیلی کے اندر واقعی 2000 دینار تھے؟ وہ کہنے لگا ضرور 2000 دینار تھے، اور میں نے پوری نشانی لگا کر میں نے اس کو تھیلی دی تھی، اور جب واپس لی تو وہ دینار نہیں تھے اندر۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک بار پھر بھی سوچ لو، کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا معاملہ بڑا مشکل ہے، لیکن تم جاؤ، مایوس نہ ہو، انشاءاللہ تعالی میں تمہارے اس معاملے کی بہتری کے لیے تدبیر سوچتا ہوں۔ یہ بہت ہی ذہین تھے، آپ سوچتے رہے اور آپ کو ایک تدبیر آئی ذہن میں، اور ہوا یہ کہ جس مسند پر سلطان بیٹھا کرتے تھے، اس مسند کے اوپر جو قالین بچھا ہوا تھا، جو چیز تھی، اس کو خود محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی چیز سے اس کو چیر دیا۔ چیرنے کے بعد جب وہ چیز پھٹ گئی، آپ کسی کام سے 3 دن کے لیے چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو آپ کے قریبی ساتھی جو خاص ایک خادم تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ تو مسند پھٹی ہوئی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، یہاں تو پرندہ پر نہیں مار سکتا، بادشاہ کی مسند پہ کون آ کے اتنا بڑا نقصان کر کے چلا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو بادشاہ واپس آ جائیں، ایسا نہیں ہمیں پھر جواب دینا پڑ جائے، اور ہم کیا جواب دیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، اتنا بڑا نقصان کیسے ہو گیا ہے، بادشاہ کی مسند پھٹ گئی ہے اور پتہ نہیں چلا یہ کتنا بڑا چیرا کیسے لگ گیا ہے مسند پر، اور یہ قالین پھٹ چکا ہے۔ تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، وہ بڑے پریشان ہوئے، جتنے بھی دربار کے رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی اس کو صحیح طریقے سے بنانے کا سوچا جائے۔ اب کھلبلی مچ گئی دربار میں، جتنے لوگ تھے وہ سارے پریشان ہونے لگے۔ آخرکار ان درباری میں ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے کہا تم پریشان نہیں ہو، ایسا کرتے ہیں کہ میں ایک ایسے رفوگر کو جانتا ہوں کہ جو اس طریقے سے رفو کرے گا، اس کو بنائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا چیرا بھی لگا تھا کہ نہیں لگا تھا، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کو بلا لیں۔ جب ان کو بلایا گیا، اس رفوگر کو، جس کو احمد کہتے تھے، وہ رفوگر احمد جب آیا تو اس نے آ کر کہا جی میں 2 دینار لوں گا اور میں رفو کر دوں گا، اور اس طریقے سے رفو کروں گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں چیرا لگا تھا، پھٹی تھی یہ جگہ کہ نہیں مسند۔ وہ جو خاص خادم تھا وہ کہنے لگا آپ 2 کی جگہ 4 دینار لے لیں، لیکن کام ایسا کریں کہ پتہ نہ چلے گا یہاں پر یہ نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ جناب اس رفوگر نے بہترین طریقے سے اس کو رفو کیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مسند کا یہاں پر یہ چیرا لگا تھا، پھٹی تھی یا نہیں پھٹی تھی یہ جگہ۔ بہرحال
जब वो महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वापस आए अपने दरबार में, आते ही उन्होंने कहा कि ये मसनद यहाँ पर फटी हुई थी, तो ये कैसे ठीक कराई गई? तो जो आपके करीब खास बंदा था, खास गुलाम था, उसको बुलाया गया। उसने कहा जी नहीं नहीं, ये तो फटी हुई नहीं थी जगह, ये तो ऐसे ही थी, देखें आप कहाँ फटी हुई नजर आ रही है, आपको जगह कोई चिरा है लगा हुआ? महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम झूठ मत बोलो, ये जगह किसी और वजह से नहीं फटी थी, ये मैंने खुद ही चिरा लगाया था यहाँ पर। अब उस शख्स के होश ठिकाने आ गए, वो कहने लगा कि जरूर कोई वजह है, कोई मसला है जिस वजह से महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला ने ऐसा किया है, जरूर कोई वजह है। अब महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अपने उस खास खादिम से फरमाया कि तुम परेशान नहीं हो, बस इतना बताओ कि ये किस बंदे ने इसको रफू किया है, उस बंदे का नाम बता दो। तो वो खास खादिम कहने लगा कि वो फलां शहर में रहने वाला, फलां जगह रहने वाला अहमद नामी रफूगर जो है, उससे हमने ठीक कराया है। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि उसको बुला कर ले आओ। जब वो शख्स आया तो आपने उससे कहा कि ये जगह तुमने ठीक की है? वो कहने लगा जी हुजूर ये मैंने ठीक की है। कहा वाह क्या कारीगरी है तेरी, कितनी बेहतरीन जगह तुमने ठीक की है। वो बड़ा खुश हुआ बंदा, वाह मुझे शाबाश मिल रही है। इतने देर में आपने वो थैली मंगवाई और कहा कि इस थैली को तूने ठीक किया है? तो वो शख्स कहने लगा हाँ, फलां काजी के कहने पर मैंने इसको रफू किया है। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला सारा वाकया समझ गए कि बात क्या है। जो थैली बज़ाहिर देखने में लगती ही नहीं है कि इसको रफू किया गया है, ये थैली को फाड़ कर इसके अंदर से दिनार निकाल दिए गए हैं, लगता ही नहीं कहीं से, बड़े गौर से भी देखो तो कहीं से पता नहीं चलता। लेकिन इस रफूगर ने ऐसा रफू किया है कि पता ही नहीं चलता कि ये थैली फटी थी कि नहीं फटी थी। आखिरकार महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह समझ गए और उस रफूगर को भेज दिया। दरबान जो थे उनको कहा कि काजी को बुला कर लाओ। जब काजी को बुला कर लाया गया, वहां ना तो थैली का मालिक था ना रफूगर था उसके दरबार में। काजी साहब को बुलाया गया। काजी साहब से ये पूछा महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि ये बताओ कि तुम्हारे पास जो थैली अमानतन रखवाई गई थी, उस थैली के अंदर जो दिनार थे वो उसको उसी की थैली उसको वापस की है तुमने? वो काजी साहब कहने लगा कि जी आपने मुझे अमानत पर मुंतखब किया है, लोगों के फैसलों पर मुंतखब किया है। काजी का मतलब पुराने जमाने में नाम इसको काजी कहा जाता था, एक लिहाज से शरई लिहाज से, लेकिन मौजूदा दौर के हिसाब से इसको चीफ जस्टिस कह लें, जो लोगों के दरमियान फैसले करता है, वो बड़ा जिसका ओहदा होता है। तो बहरहाल वो काजी साहब जो थे वो कहने लगे कि जी हुजूर ये मैंने ही थैली उसे वापस की है, और जितनी भी अमानतें रखी हुई थी मैंने इस बंदे को कह दिया था कि आप अपनी थैली खुद ही पहचान लें। इसने खुद पहचानी है और इसकी मोहर भी मौजूद थी और इसने अपनी थैली खूब गौर और खौज के साथ देखी है, लिहाजा मैंने इसके साथ कोई दो नंबरी नहीं की, मैंने कोई इसके पैसे नहीं चुराए, मैंने किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तैश में आ गए, गुस्से में आ गए। फरमाया तुम खामखा में अपने इस झूठ को मत छुपाओ, तुमने बहुत बड़ी खयानत की है, इसलिए अब तुम्हें सच बोलना होगा। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला ने उन दो शख्सों को बुलाया, जो थैली का मालिक था और रफूगर था। जैसे ही वो रफूगर काजी के सामने आया, काजी के होश उड़ गए। काजी ने कहा मामला तो कुछ और है, यहाँ पर तो कुछ और हो चुका है। काजी साहब ने जैसे ही उसको देखा, अपने पसीने में शराबूर, कहने लगा कि अब तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। तो महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला ने उस रफूगर से कहा कि यही है वो काजी जिसने तुम्हें रफू के लिए बुलाया था? काजी यही काजी है। अब क्योंकि सारा मामला तो काजी के ऊपर आ रहा था, मरता क्या ना करता, फिर काजी को कबूल करना पड़ा कि वाकई मैंने ये जुर्म किया है। मैंने इसके दिनारों को अंदर से निकाल करके वहां पर चांदी के छोटे छोटे दिनार डाल दिए हैं थोड़े से। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसके 2000 दिनार जो थे उसको वापस किए और काजी को सजा मुकर्रर की, उसको जेल में डाल दिया। और काजी ना सो सकता था, रात को सोता उसको नींद ना आती, इतनी बड़ी इज्जत थी उसकी मुआशरे में। और फिर वो जलील होकर जेल में गया, और गया भी किस तरह, खियानत करके गया है। वो किसी शख्स की माल के अंदर खियानत करके गया है और उसको तो नींद नहीं आती, खाना खाता उसे खाना ना खाया जाता, पानी पीता उसे पानी ना पिया जाता, और फिर वो इस तरह सोने की कोशिश करता, उसको नींद ना आती। बेचैनी और बेकरारी में इस कदर वो काजी बेकरार हुआ कि उसको दिल का अटैक हुआ, उसका दिल काम करना ही छोड़ गया। सुबह जब दरवाजा खोला गया, काजी फौत हो चुका था। मदनी चैनल के नाजरीन, देखा आपने खियानत, जो खियानत करते हैं, किसी तरह की हेरा फेरी करते हैं, फिर वो दुनिया के अंदर भी जलील होते हैं और आखिरत की जलालत तो उनकी है ही। ये तो दुनिया का बादशाह थे, उनके सामने वो जलील हुआ। जो लोग खियानत करते हैं, खबरदार वो होश के नाखून लें। खियानत गुनाह है, मुसलमान को धोखा देना गुनाह है। खियानत से बचें और हमेशा के लिए दियानतदारी इख्तियार करें
और फिर ऐसा ना हो कि खयानत की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान और खसारा दुनिया में भी उठाना पड़े, आखिरत में भी उठाना पड़े। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, एक हदीस पाक का मफहूम है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं कि वइज़ा तोमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसकी खयानत करे, वइज़ा वादा अखलाफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब बात करे तो झूठ बोले। तो ये अमानत के अंदर खयानत करना ये मुसलमान का काम ही नहीं है, मुसलमान का तरीका ही नहीं है। तो अमानत के अंदर किसी तरह की भी खयानत नहीं होनी चाहिए। याद रखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, जिस तरह माल के अंदर खयानत होती है, इसी तरह बातों के अंदर भी खयानत होती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जब बंदा हमें कहता है ना ये बात किसी को नहीं बताना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी को नहीं बताना। अब लोग क्या करते हैं, वो बात किसी और को बता देते हैं। फिर कहते क्या है कि ये बात किसी को ना बताना, हालांकि खयानत कर दी उसने, बात किसी और को बता दी, खयानत कर दी। ऐसे ही कोई बंदा होता है वो कहता है मेरा ये नंबर है, आप अपने पास रखना, किसी को नहीं देना। या कभी अंडरस्टूड होता है कि वो नंबर दे रहा होता है और वो नंबर आम करने का नहीं होता, तो बंदा उसका नंबर किसी और को दे देता है, तो ये भी खयानत है। ऐसे ही मौजूदा दौर में व्हाट्सएप का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, कोई बंदा किसी को व्हाट्सएप करता है और वो उसी की आवाज उठा के दूसरे को फॉरवर्ड कर देता है और उससे पूछता नहीं है जिसकी वॉइस उसके पास आई थी, आवाज आई थी, वो किसी और को फॉरवर्ड कर देता है। ये भी खयानत के जुमरे में आता है। अल्लाह ताला हमें खयानत वाले इस बुरे फेल से बचाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक मैदान में तशरीफ ले जा रहे थे कि वहां पर आपको प्यास की शिद्दत हुई। एक मैदान में वहां पर एक बदवी शख्स जो देहात का रहने वाला था वो वहां मौजूद था। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उससे पानी मांगा। उसके पास पानी का मशकीज़ा था, मश्क थी जिसमें पानी भरते हैं, चमड़े की मश्क हुआ करती थी पहले दौर में। तो वो पानी का मशकीज़ा उसके पास था। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला ने उससे फरमाया कि मुझे पानी दे दो। वो शख्स कहने लगा कि जी मैं पानी दूंगा, ये मशकीज़ा पूरा मैं बेचूंगा 5 दिरहम के बदले। 5 दिरहम के बदले आपको लेना है पानी तो आप ले लें। इमाम आज़म ने फरमाया कि देखो ऐसा नहीं करो, ये 5 दिरहम का पानी है ही नहीं, तो इतना 5 दिरहम का पानी बेच रहे हो। वो कहने लगा जी नहीं, लेने आया तो 5 दिरहम का ले लें, नहीं तो मैं नहीं दे रहा। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो इंतहाई शफीक भी थे और सखावत के दरिया भी थे, लोगों पर रहम करने वाले भी थे, और कई तोलबा, हज़रत सैयदना इमाम काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आपने कुल खर्चा उठाया हुआ था उसके पढ़ने का, सारी जिंदगी का जो भी मामलात थे। तो आप ताजिर थे और लोगों को कर्ज दिया करते थे और फिर कर्ज माफ कर दिया करते थे। इतनी शफकतों वाले, इतने इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, लेकिन आपने उसको कुछ सबक सिखाना चाहा और हमें भी दर्स देना चाहा। आपने ऐसा किया कि आपके पास सत्तू था, आपने वो सत्तू जैतून के तेल में जो सत्तू बना हुआ था वो सत्तू आपने खाना शुरू किया और उस शख्स को भी दिया कि ये सत्तू तुम खाओ। जब बंदा सत्तू खाता है तो उसको फिर प्यास लगती है। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उससे पहले 5 दिरहम में वो मशकीज़ा ले लिया, फिर उसको क्या हुआ कि प्यास लगी। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहने लगा कि आप मुझे पानी दें। आपने फरमाया जी 1 गिलास दूंगा, वो भी 5 दिरहम के बदले में। वो कहने लगा जी ऐसा क्या? कहा 1 गिलास दूंगा, वो भी 5 दिरहम के बदले में। उसने वो 5 दिरहम जो थोड़ी देर पहले लिए थे ना वो वापस किए और 1 गिलास लिया 5 दिरहम के बदले में। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसे 5 दिरहम का गिलास भी दिया, मजीद भी पीने को दिया। तो फिर इस तरह वो शख्स अपनी इस बात पर नादिम भी हुआ होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, उलमा उम्मत के रहबर हुआ करते हैं और उलमा की शान बहुत बुलंद हुआ करती है। फ़क़ीह एक ज़हीन आदमी हुआ करता है। फ़ुक़हा में इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बहुत बड़ा मकाम है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतालिक इमाम अली बिन आसिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर रूए ज़मीन के आधे लोगों की अकल का वज़न किया जाए और इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला की अकल का वज़न किया जाए तो इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अकल उनमें सबसे भारी रहे। हत्ता कि इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि किसी माँ ने इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसा जना ही नहीं है। हज़रत बकर बिन हबीश रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हम मुआसरीन, हम ज़माना लोग अगर उनकी अकल के साथ इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अकल का मुआवजना किया जाए, यानी बराबरी की जाए, तोला जाए, तो इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अकल उन पर भारी निकले। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े फ़क़ीह और बहुत बड़े आलिम दीन थे। हनफी उनकी तकलीद किया करते हैं।
इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। वो शख्स, उसकी बीवी पानी लेकर आ रही थी, आपस में चपकलश हुई बीवी और शौहर की। तो उस शख्स ने ये कह दिया कि ये तो पानी ला रही है, अगर पानी तूने पिया या पानी तूने जमीन पर फेंका या पानी तूने किसी को दिया तो तुझे 3 तलाक। आप बीवी ना तो पानी पी सकती है, ना किसी को दे सकती है, ना जमीन पर गिरा सकती है, ना उसको उठा उठा के फिर सकती है। लोग परेशान हो गए, उलमा उस मसले का हल निकालने के लिए किताबें खोलने लगे, परेशान हो गए इसकी बीवी को कैसे बचाया जाए, इसके निकाह में बाकी रहे। बहरहाल उसने 3 तलाक का कह चुका था वो, और मुअल्लक हो चुकी थी तलाक। अब पानी गिरता है तो तलाक पड़ती है, पानी किसी को देती है तो तलाक पड़ती है, पानी वो खुद पीती है तो तलाक पड़ती है। इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास जब मसला पेश हुआ, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे कि इस पानी के अंदर एक कपड़ा भिगो लो, कपड़ा भिगो लो, भिगो लो और भिगो लो, हत्ता कि जो प्याले में जितना पानी है वो सारा कपड़ा पी ले, कपड़े में आ जाए, लिहाजा तलाक भी नहीं होगी। ये इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कितना बड़ा आला ज़हन था, आला मकाम था, आपका मसले को यूं हल कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खास फैजान था आपको। मदनी चलन के नाज़रीन, हज़रत सैयदना इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अकल मुबारक के मुतालिक ऐसे ही वाक़यात मज़ीद इंशाअल्लाह हम सिलसिले में शामिल करेंगे। आप ये सिलसिला अकल वालों के वाक़यात देखते रहिए। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ बेवकूफ़ों के वाक़यात भी हम बयान करेंगे ताकि हमें पता चले कि अल्लाह ने जो हमें अकल दी है कितनी बड़ी नेमत है। बेवकूफ़ को देखकर अपनी अकल का शुक्रगुजारी करें अल्लाह की बारगाह में। ये भी इंशाअल्लाह हम आगे चल के वाक़यात बयान करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, इमाम अबुल हारिस लैस बिन साद अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप बहुत बड़े मिस्र के फ़क़ीह आलिम दीन थे, और एक फ़क़ीह बहुत ज़्यादा ज़हीन हुआ करता है, बहुत ज़्यादा अक्लमंद हुआ करता है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतालिक इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते कि इमाम लैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत ज़्यादा फ़क़ीह थे, बहुत ज़्यादा ज़हीन थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह 175 सने हिजरी में आपने वफ़ात पाई है। खलीफा हारून रशीद का दौर था कि इमाम लैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस ज़माने में हयात थे। हुआ ये कि एक मरतबा खलीफा हारून रशीद उसको एक मसला दरपेश हुआ, और जुबैदा जो उनकी बीवी थी उनके साथ उसकी तलख कलामी हुई, और कुछ बात बढ़ते बढ़ते खलीफा ने यह बात कह दी कि मैं अगर जन्नती नहीं हूं तो फिर तुझे 3 तलाक। जब उसने ये कहा तो एकदम जब गुस्सा उसका खत्म हुआ, फिर उसको होश आया कि ये मैंने क्या कह दिया। अब बंदा भी हालत भी यही हुआ करती है, जब हमारे घर में मुआशरे में इधर उधर झगड़े हुआ करते हैं तो लोग गुस्से में आके तैश में आके न जाने ऐसे अल्फाज बोल देते हैं, बाद में जब गुस्सा ठीक होता है तो फिर पता चलता है कि क्या 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 हो गया है। लिहाजा गुस्से पर कंट्रोल होना चाहिए। अक्लमंद बंदा हमेशा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखता है, इसलिए मदनी चैनल के नाजरीन गुस्से पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और गुस्से के क्या क्या इलाज हैं ये आप शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मुद्दा ज़िलुल अली का रिसाला गुस्से का इलाज मदनी चैनल के नाजरीन इसे पढ़िए, दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं। इस रिसाले को पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुस्से को कंट्रोल करना हमारे लिए इंतहाई आसान होगा। तो बहरहाल खलीफा हारून रशीद का दौर था, और खलीफा ने अपनी बीवी से इस तरह गुस्से के अंदर जब बात ये कर दी, उसको होश आया बाद में कि ये मैंने क्या कह दिया। अब क्योंकि बात भी ऐसी थी जो इंतहाई मुश्किल थी, खलीफा ने बड़े बड़े उलमा को जमा किया और सोचा कि इस मसले का हल निकाला जाए। बीवी ने पर्दा कर लिया, आप बीवी के पर्दे से, और इस तरह के मामले से खलीफा इंतहाई परेशान हो गया और सोच विचार में उलमा को जमा किया। उलमा बैठे, खूब गौर किया, लेकिन कोई सूरत नहीं निकल पा रही थी कि इसकी बीवी इसके निकाह में मौजूद रहे। बहरहाल बड़े बड़े लोग खूब किताबें खोलते रहे, सोचते रहे, लेकिन किसी भी आलिम दीन को इसका हल ना मिला। वहाँ के मुहद्दिस, वहाँ के फ़क़ीह शेख लैस बिन साद रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े फ़क़ीह आलिम दीन थे। आप भी उस दरबार में मौजूद थे, सबसे आखिर में मौजूद थे। खलीफा हारून रशीद ने कहा कि हुजूर आप भी कुछ बोलें, आप भी कोई सूरत निकालें। आपने फरमाया मैं आपसे अलग मिलना चाहता हूँ। खलीफा ने कहा ठीक है। बाकी उलमा को जो भी इनाम इकराम थे, जो बातें थी, जो कुछ देना था वो दिया। और खलीफा क्योंकि उलमा से बेहद मोहब्बत किया करता था और उलमा के अदब एहतराम के साथ उन्होंने रुखसत किया। और फिर वो शेख अबुल हारिस लैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ अलग मकान में खलीफा जब पहुंचा तो शेख साहब फरमाने लगे कि आप मेरे सामने बैठ जाएं, कुरान पाक मंगा लें। कुरान पाक मंगवा लिया गया, खलीफा सामने मौजूद है।
शेख लैस रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमाए और खलीफा को कहा कि आप कुरान पाक पढ़ना शुरू करें। सूरह रहमान को पढ़ना शुरू किया। जब सूरह रहमान को पढ़ना शुरू किया, जब इस आयत पर पहुंचे, वालिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जब इस आयत पर पहुंचे खलीफा, तो शेख साहब ने फरमाया, शेख लैस रहमतुल्लाह ने, आप रुक जाएं और आप कहें कि अल्लाह की कसम मुझे। जब ये शेख साहब ने फरमाया तो खलीफा एकदम गुस्से में आ गया। तो शेख लैस रहमतुल्लाह ताला ने फरमाने लगे कि आप गुस्सा ना करें, आप जान की अमान दे चुके हैं, जो मैं कह रहा हूं वो करें। तो खलीफा हारून रशीद कहने लगा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं कि मुझसे कसम ले रहे हैं। तो शेख लैस रहमतुल्लाह ताला फरमाने लगे कि जो मैं आपको कह रहा हूं वो करें। आप ये कहें, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, मैं अपने रब की बारगाह में खड़े होने से डरता हूं। जब खलीफा ने यह कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, मैं अपने रब की बारगाह में खड़े होने से डरता हूं, तो जब ये कहा तो एकदम जो शेख लैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह थे वो झूम उठे और कहा कि आपकी बीवी को तलाक नहीं हुई। खलीफा ने कहा कि ये क्या? कहा कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होने से डरते हैं और आपकी ये कैफियत है, आप अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरते हैं, लिहाजा आपके लिए 2 जन्नतें हैं। आपने कहा था अगर मैं जन्नती नहीं हूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक, तो आपके लिए तो 2 जन्नतें हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह की जनाब में, लिहाजा आपकी बीवी को तलाक नहीं हुई। अल्लाह अकबर। खलीफा को एक मसला न सिर्फ बताना था बल्कि खलीफा की नफ्सियात के मुताबिक, मकाम के मुताबिक उसे अलग ले जाकर मसला समझाना भी था और कुरान करीम से समझाना था। वो इमाम फकीह, वो आलिम दीन, उन्होंने खलीफा को वो मसला भी समझाया और खलीफा को ये बावर करवाया, ये समझाया कि उलमा वो उलमा हुआ करते हैं जिनकी बारगाह में बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े लोग खुद हाजिरी दिया करते हैं। ये हुक्मरान उलमा के मोहताज हुआ करते हैं। उलमा की बहुत बड़ी शान है। मेरे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का एक मफहूम है, खुलासा है कि अल्लाह तबारक व तआला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसके मुशीरों में जिससे वो मशरा लेता है उनमें अच्छे लोग शामिल कर देता है, उलमा शामिल कर देता है, जो अगर वो भूलें तो उन्हें याद दिलाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको दीन के राह पर गामजन रखते हैं। ये उलमा हुआ करते हैं जिनकी बारगाह में बड़े बड़े लोग खुद हाजिर हुआ करते हैं। तो खलीफा ने शेख लैस बिन साद रहमतुल्लाह ताला अलैह को बहुत बड़ा इनाम और इकराम भी दिया और उनको काजी भी मुकर्रर किया कि आप बहुत बड़े फकीह हैं, आप लोगों के दरमियान फैसला करना जानते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, कभी कोई ऐसा मसला घर में हो जाए तो लोग बैठ कर कहते हैं घर में जी हम मसला हल कर लेते हैं, सुलह सुलही करके बिठा देते हैं। लिहाजा ऐसा ये मसला अगर हो जाए इस तरह का कुछ, तो वो खुद घर के बड़े 2-4 लोग बिठा देते हैं। ये मसला घर में हल होने वाला नहीं है। ये मसला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, एक आलिम दीन मुफ्ती के पास जाकर ये मसला हल होता है जब तलाक का कोई मामला हो। लिहाजा ऐसे अल्फाज, ऐसी बातें जबान पर तो लानी ही नहीं चाहिए। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कुछ हो और फिर हम बाद में पछताते रह जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला उलमा का साया इस उम्मत पर कायम व दायम रखे। ये उलमा उम्मत के गले में गोया एक तावीज है, तावीज उलमाए हक, ये उम्मत के गले में एक तावीज है। जिस तरह तावीज गले में होता है और अल्लाह के हुक्म से बलाएं, आफतें, मुसीबतें दूर रहती हैं, इसी तरीके से जब तक ये उलमा इस उम्मत में मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत पर कयामत कायम नहीं करेगा। पहले उलमा उठेंगे, इल्म उठा लिया जाएगा, उसके बाद कयामत कायम होगी। तो ये उलमा का होना तो उम्मत के लिए एक तावीज है। कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक उलमाए हक मौजूद हैं, इल्म मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला उलमाए हक, उलमाए रब्बानीयीन, उलमाए हक का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत मुद्दतुल आली का साया तादेर कायम दायम फरमाए। दावत इस्लामी को दिन 11वीं रात 12वीं हर लम्हा तरक्कियां और उर्ज अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें उलमाए हक अहले सुन्नत की सोहबत, उनका इल्म से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। उलमाए हक की किताबें पढ़ें, उलमा से मोहब्बत करें, इल्म से मोहब्बत करें, अपनी औलाद को आलिम बनाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये उम्मत के हादी, उम्मत के रहनुमा, उम्मत के रहबर बनेंगे इंशाअल्लाह। आप जो अगर इसके वालिदैन फौत भी हो जाते हैं तो इन्हें भी कब्र के अंदर राहत और सुकून मिलता रहेगा। जिस तरह दुनिया के अंदर एक कमाऊ पुत्र हुआ करता है, जो कमा कर लाता है वो बाप को बड़ा प्यारा लगता है कि मेरा बेटा पैसा कमा के लाया है। जब ये बाप फौत हो जाता है, कब्र में पहुंच जाता है, वहां पर अगर दुनिया में ये बेटा माल कमा के लाएगा, कब्र में बाप को खुशी नहीं होनी,
باپ کو خوشی قبر میں کب ہونی ہے؟ جب یہ بیٹا دنیا کے اندر نیک کام کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے باپ کو قبر میں سکون ملے گا، راحت ملے گی، خوشی ملے گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اپنی اولاد کو نیک بنائیے۔ نیک بنانے کے ایک بہترین ذریعہ کیا ہے؟ وہ دعوت اسلامی کا مہکہ مدنی ماحول ہے۔ اپنی اولاد کو اس دعوت اسلامی کے مہکہ مدنی ماحول سے خوب وابستہ کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی راحت اور سکون حاصل ہوگا، اور قبر میں بھی انشاءاللہ راحت و سکون حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن بھی راحت و سکون حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔